Good morning, student. Today in this session we will be solving the question papers of the year 2018. Okay. First, I am taking student the electricity questions. Okay. Questions based on electricity, which was asked on 2018. Questions based on electricity, student. The question was, student, some values of potential difference and the current across the resistor was given, student, and the values which are given are like this, student. The V for volts and the current was given, student, in amperes. This was the experiment done across a resistor, okay, by passing variable current. So the in this question which was asked in 2018, the values which are given were 0.5, then 1, 1.5, 2, like this, 2.5, 3, 3.5, after 3 the value was given to be 4, student, in this question, and then 5 was given. Now I was given in amperes, student. Here the current was 0.1, 0.2, like that it was given 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, and here it was given 1. And the student question was asked, plot the graph between V and I and find the resistance of the resistor. First, plotting graph, and second question was find the value of resistance. So student, for plotting the graph, there are two ways. Either you can take x-axis V or y-axis V. Now I am drawing the graph. I am taking, student, y-axis V and here x-axis I. Then, as you know the graphical method, student, you have to choose one scale. X-axis, say I may choose 1 centimeter as 0.1 ampere, and y-axis also I may choose 1 centimeter as 0.5. Based on the suitability, you can choose any value, student. Okay. So if you see the corresponding values, student, how the voltage is increasing, in the similar way current is also increasing. So in this case, student, you will get a straight line like this. Now, student, there are two methods of finding resistance. Okay. The formula is R is equal to V upon I. One, since the ratio is directly proportional in this as the observations, I can choose any value. Say I will choose this value 2. For voltage 2, current is 0.4. So I can write 2 and 0.4. If I solve this, student, I am getting 5. You may take any other value, student. Say 2.5, 0.5. 2.5, 0.5. Again I am getting the, student, 5. Sometimes, student, the resistance may change at higher temperature or higher voltage side. Now one more method what you can apply, student, in this is you choose any corresponding two values. Say when the voltage varies from 0.5 to 1, current varies from 0.1 to 0.2. Now this formula you can use like this, student. R is equal to delta V upon delta I. Delta V means from here to here, how much is the change in voltage? So 1 minus 0.5. How much is the change in current? 0.2 minus 0.1. So if I solve this, student, I will get 0.5 upon 0.1. Again, student, the answer I count out to be same. See. So by any of the method, student, you can solve this question.
First, you have to draw the graph, and then from the graph you choose any corresponding values of V and corresponding values of I and divide it, or you take any 2 points, find the change in I in this and find the change in V in this. So this ratio, student, change in Y coordinate, upon change in X coordinate. This ratio in mathematics it is known as slope of the graph. स्लोप ऑफ द ग्राफ स्टूडेंट, इसको स्लोप कहते हैं. और अगर हम y एक्सिस में v लेते हैं और x में I लेते हैं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ हमें रेजिस्टेंस बताएगा. ये एक थ्योरी है स्टूडेंट. देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव अस आवर रेजिस्टेंस. लेकिन कंडीशन क्या है, हमें v लेना पड़ेगा y एक्सिस पे और I लेना पड़ेगा x एक्सिस पे. तो स्टूडेंट ये वाला एक क्वेश्चन था जो 2018 में आया है स्टूडेंट. पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट जो एक और क्वेश्चन इसमें था वो था रिलेटेड टू एक न्यूमेरिकल से स्टूडेंट. इसमें स्टूडेंट बताया गया था इस क्वेश्चन में दैट 3 रजिस्टर्स were given. क्वेश्चन में स्टूडेंट 3 वैल्यूज ऑफ रजिस्टर दिया हुआ था. थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 9 ओम. सबकी वैल्यू 9 ओम थी स्टूडेंट. अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये था हाउ विल यू ज्वाइन, हाउ हम इनको ज्वाइन कैसे करें ताकि द टोटल रेजिस्टेंस I should get, the question was 13.5 ohm. टोटल रेज 13.5 ओम. और दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट टोटल आर आना चाहिए 6 ओम. तो स्टूडेंट सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो 3 रजिस्टर ईच ऑफ इक्वल वैल्यू, सबसे पहले आप एक जस्ट बाय कॉमन सेंस अगर हम तीनों को सीरीज में लगाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट वो आएगा 3 इंटू 9 27 ओम. ओके स्टूडेंट. और अगर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट, पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं. जब इक्वल रेजिस्टेंस लगाते हैं 1/r डैश, मान लो ऐसे n रेजिस्टर्स हैं r के, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है स्टूडेंट R अपॉन n. तो यहाँ पैरेलल में अपने पास दिया है 9 और टोटल है 3, तो पैरेलल में स्टूडेंट आएगा 3. लेकिन अपन को इन दोनों वैल्यू दी नहीं गई है. इसमें एक में स्टूडेंट इससे कम है और एक में आप कंपेयर करो इससे ज्यादा है. ऐसे आप देख सकते हो स्टूडेंट. नाउ सी, अब तीनों को मैंने लगा के देख लिया. नाउ लेट अस कनेक्ट 2 रेजिस्टेंस. पहले अब मैं 2 को लगाता हूं स्टूडेंट. तो जब मैं दोनों को लगाऊंगा सीरीज, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है स्टूडेंट. जब मैं दोनों को लगाऊंगा सीरीज में तो इसमें स्टूडेंट जो टोटल आर आएगा वो आएगा 18 ओम. अब स्टूडेंट 18 13.5 से तो ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी अपने पास एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है. और एक चीज याद रखना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. इन पैरेलल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. तो हम स्टूडेंट कोशिश करके देख सकते हैं कि इसमें हम एक रेजिस्टेंस पैरेलल लगा के देख लें. अगर मैं इसमें एक पैरेलल लगा दूं स्टूडेंट तो ये तो 18 हो गया स्टूडेंट. 18 और 9, ये है 18 और ये है 9. यहां हमके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट. अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं पैरेलल में स्टूडेंट कितना आ रहा है टोटल रेजिस्टेंस. 1/18 प्लस 1/9 एलसीएम 18 स्टूडेंट 3 अपॉन 18 1/6. तो अपना रेजिस्टेंस आ रहा है 6 ओम स्टूडेंट. देखो एक आंसर मैच कर गया अपन से.
जबकि अपन सॉल्व स्टार्ट किए थे इसको करना, लेकिन सॉल्व ये वाला हो गया स्टूडेंट। मतलब हम इस कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में और एक पैरेलल में लगा रहे हैं स्टूडेंट। टू रेजिस्टेंस इन सीरीज, टू रेजिस्टर्स in series and one resistor in parallel। तो हमें 6 वाला मिल गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें 13.5 को देखना है। अब स्टूडेंट आप क्या करो, इसी तरह से आपको सीरीज पैरेलल करके देखते रहना है। अब मुझे 9 से बड़ा चाहिए 13, तो एक रेजिस्टेंस तो 9 का अपना ऑलरेडी है। अब मुझे इसके साथ मैं दो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ नहीं पाऊंगा और तो 27 हो जाएगा। तो मुझे 9 से ज्यादा चाहिए लेकिन 27 से कम चाहिए। तो अब मैं एक ट्राई कर सकता हूं कि इसके साथ जो बाकी दो रेजिस्टर उसको स्टूडेंट पैरेलल लगा के देख लेता हूं। ये मैं ट्राई कर सकता हूं। 9 जब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला ये अपन ने लिखा हुआ है R/N। तो ये वाला जो पोर्शन होगा स्टूडेंट, R/N फॉर्मूला से, R मतलब 9, N दो रेजिस्टर है 2, 4.5। तो ये स्टूडेंट आ गया 4.5। देखो स्टूडेंट, आप ये टोटल सीरीज में कर दीजिए, आपका आंसर आ गया है 13.5। इस तरह से स्टूडेंट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। तो मैक्सिमम पहले आप ये देख लीजिए, सीरीज में मैक्सिमम इतना पॉसिबल है और सबसे कम इतना पॉसिबल है, और अपना दोनों के बीच में वैल्यूज हैं। तो आपको कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में आपको लगाने पड़ेंगे, वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। पहले आप दो रेजिस्टर को एक बार सीरीज में लगा के देखो, तीसरे के साथ पैरेलल में लगाओ, फिर एक बार क्या करो, दो को पैरेलल में लगाओ, एक को सीरीज में लगाओ। लाइक दिस यू हैव टू ट्राई। जब भी ऐसे 3 वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो को आप पहले सीरीज में लो, किसी भी दो को, उसके साथ एक पैरेलल जोड़ दो, और फिर आप दो को पैरेलल में लो और थर्ड को सीरीज में जोड़ दो। आप देखना आपका आंसर उसी में आ जाएगा स्टूडेंट। और जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस टोटल, हमारा रेजिस्टेंस सिंगल जो है उससे भी कम आता है। देखो सिंगल का वैल्यू 9 था और जब पैरेलल में कितना आ गया 3, जब कम हो गया। और जब हम सीरीज में लगाते हैं तो इससे ज्यादा आता है, तो वो आया 27 स्टूडेंट। तो दिस इज द थ्योरी स्टूडेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी अनदर क्वेश्चंस। जो एक और, पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया था वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आया हुआ है स्टूडेंट। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये तो अपन स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जब भी स्टूडेंट अपन एक रेजिस्टेंस से करंट पास करते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे चार्ज क्यू का फ्लो होता है चार्ज, और इस चार्ज को फ्लो कराने में हमें वर्क डन करना पड़ता है स्टूडेंट। और वर्क डन कौन करता है? ये बैटरी। तो पोटेंशियल का मीनिंग है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम तो यूनिट नहीं क्यू चार्ज भेज रहे हैं। तो स्टूडेंट जब 1 चार्ज के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है V मतलब एक नंबर है स्टूडेंट, आप समझ सकते हो, V जूल सिंगल 1 चार्ज या यूनिट चार्ज बोलते हैं इसको। हम तो क्यू चार्ज भेज रहे हैं, तो क्यू चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा QV। और स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क कहाँ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे हीट बन के ये डिसिपेट होगा। सो दिस एनर्जी विच इज गिवन बाय द बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब ये वाला हीट का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। अब चार्ज को अपन मापते कैसे हैं स्टूडेंट? सपोज हमने करंट पास किया फॉर टाइम t सेकेंड, और करंट इसमें I है, तो Q इज इक्वल टू IT होता है स्टूडेंट, ये आपको पता है।
और स्टूडेंट V का फॉर्मूला जब करंट फ्लो होता है R से, V इज आई आर इंटू आई इंटू आर। तो देखो ये हीट का फाइनल फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट आई स्क्वायर आर टी। ये है स्टूडेंट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या बता रही है, जब हम एक रेजिस्टेंस से करंट पास करेंगे तो वो जो हीट जनरेट होगा इट विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स। इट विल डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ द करंट, करंट के स्क्वायर पे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब आप करंट डबल कर दो तो करंट उसका स्क्वायर, हीट उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा। मान लो पहले यदि करंट था, पहले करंट था 2 एम्पियर और अब आपने करंट कर दिया 4 एम्पियर स्टूडेंट, अब आपने करंट को 4 बढ़ा दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हीट कितना बढ़ेगा, 2 स्क्वायर 4, 4 4 जाए और 4 स्क्वायर 16, 4 टाइम्स हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। ये इसका मीनिंग है। और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट, और आर के भी ये प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी स्टूडेंट। और इसलिए अपन एलॉयज को लेते हैं फॉर द हीटिंग डिवाइस की। एलॉय का आर जनरली ज्यादा होता है स्टूडेंट। और एलॉय में एक और प्रॉपर्टी होती है, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। अब स्टूडेंट ये जो हीट है इससे कई न्यूमेरिकल भी तैयार हो सकते हैं। आपको हो सकता है हीट का वैल्यू दे दिया हो जूल में, हीट का जूल में, तो आपको टाइम पूछ लिया, ये सब दिया हो, तो इससे आपको टाइम का फॉर्मूला भी आ जाएगा स्टूडेंट, कितने टाइम में हीट होगी। या हीट आई और टी, आर का फॉर्मूला भी इससे आ जाएगा स्टूडेंट। रेजिस्टेंस कितना होगा, एच अपॉन आई स्क्वायर टी। इसी से कई फॉर्मूला, कई न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं स्टूडेंट। और वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर हम टाइम को 1 सेकेंड ले लें तो हीट का फॉर्मूला हो जाता है आई स्क्वायर आर। तो हीट एनर्जी पर सेकेंड, हीट एनर्जी पर सेकेंड, इसी को स्टूडेंट एक और इसका नाम है पावर डिसिपेटेड। इसलिए कहीं कहीं पावर का फॉर्मूला भी यही लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब क्योंकि हीट बन के निकल जा रहा है, इसको पावर लॉस भी कहते हैं। जब एक तार से करंट फ्लो होती है आर रेजिस्टेंस से, इतना पावर का लॉस होता है स्टूडेंट, दिस इज अ पावर लॉस ऑल्सो। और कुछ कुछ जगह में हम इस पावर को यूज कर लेते हैं एज ए हीटिंग इफेक्ट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट जूल्स लॉ के हीटिंग से था, जो आपको हीटिंग लॉ लिखना था, ये आपको वर्ड्स में लिखना है स्टूडेंट। नाउ अनदर क्वेश्चन वाज, टू लैम्प्स दिया हुआ है स्टूडेंट, 2 लैम्प दिए गए हैं। वन रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे की रेटिंग दी हुई है स्टूडेंट 60 वाट 220 वोल्ट। सेकंड, ये रेटिंग दी हुई है 60 वाट 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट पहला जो मैसेज है रेटिंग से स्टूडेंट, आपको कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ये इसका मेथड है, कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के हिसाब से रेटिंग बनाई जाती है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है स्टूडेंट R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो पहले वेल का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, R1 220 स्क्वायर अपॉन पी 100, और दूसरे का कितना आ जाएगा स्टूडेंट 220 स्क्वायर अपॉन 60। तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका है स्टूडेंट, जिसका पावर कम है, अगर वोल्टेज सेम हो तब। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है स्टूडेंट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है स्टूडेंट। इन दोनों ही बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। अब बल्ब रेजिस्टेंस बन गया है स्टूडेंट R1 R2, और स्टूडेंट सप्लाई वोल्टेज जो दी गई है वो है 220 वोल्ट। ये स्टूडेंट याद रखना, इसमें सप्लाई वोल्टेज अलग से दिया रहता है। आप सप्लाई वोल्टेज को ये वाला वोल्टेज मत मान लेना, इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा सप्लाई वोल्टेज। अब स्टूडेंट पूछा है फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द टू बल्ब, करंट
drawn by the two bulb। तो स्टूडेंट आप इससे ले लो करंट I1, इससे ले लो करंट I2। अब स्टूडेंट हमारे पास एक और फॉर्मूला है स्टूडेंट, P का फॉर्मूला है VI। इससे हम करंट यदि निकालते हैं I1 इज इक्वल टू P बाई V। तो P स्टूडेंट दिया हुआ है अपन को 100 और V है स्टूडेंट सप्लाई वोल्टेज 220। उसी प्रकार स्टूडेंट हम I2 निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। P है 60 और V है 220 और करंट ड्रॉन दोनों करंट को ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट, I1 प्लस I2। तो ये स्टूडेंट 1/220 अपन कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 160, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अराउंड आंसर 0.72 आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। और भी इसके मेथड स्टूडेंट, पर इसमें लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। अपन वोल्टेज में निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर, यहाँ से भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। I इज इक्वल टू V बाई आर से भी निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V है 220 और R है ये वाला स्टूडेंट, देखो ये। फिर मैं स्टूडेंट आपको करके दिखा रहा हूँ, उससे भी करंट आंसर सेम आएगा स्टूडेंट। देखिए मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया है। अब देखो स्टूडेंट I1, ये इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। I1 इज इक्वल टू V है 220 अपॉन R1 स्टूडेंट। R1 मतलब ये वाला वैल्यू 220 स्क्वायर अपॉन 100, इसको मैं ऊपर लेता हूँ। I2 स्टूडेंट V फिर से 220 है, R2 ये है स्टूडेंट 220 स्क्वायर इंटू 60। अब स्टूडेंट इसको आप देखो सॉल्व करो, ये 220 कैंसिल हो गई, 100 अपॉन 220, यहाँ एक 220 कैंसिल हो गया, 60 अपॉन 220, दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट, यही वाले टर्म्स आ रहे हैं, ये देखो स्टूडेंट, एंड अगेन द टोटल करंट विल बी सेम। तो स्टूडेंट इसके अलग अलग मेथड है, आप अलग मेथड इसको यूज कर सकते हो। फिर स्टूडेंट जो क्वेश्चन आया था, व्हाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग में एलॉय क्यों यूज करते हैं, अभी मैंने जस्ट नाउ आपको बताया था। एक तो एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज, आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं स्टूडेंट। एलॉय डज नॉट ऑक्सीडाइज एट हायर टेम्परेचर, alloy does not oxidize at higher temperature। और दूसरा स्टूडेंट, its resistivity is high। इसमें स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी भी इसकी होती है, वो मैं आपको एक और बता दूं जो आपकी बुक में भी नहीं है। द चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। मतलब एलॉय में क्या होता है, जैसे ऑल सब्सटेंस का क्या होता है, टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस बदलती रहती है स्टूडेंट। लेकिन एलॉय एक ऐसा चीज है जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी रेजिस्टेंस में चेंज नहीं के बराबर होता है। इससे क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इफेक्ट नहीं पड़ती हैं, ये भी एक रीजन है। तो एलॉय में ये एक और प्रॉपर्टी स्टूडेंट होती है। इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में इसका एक और टर्म है स्टूडेंट, इसको कहते हैं लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये एलॉय में होता है स्टूडेंट, ये वाला प्रॉपर्टी।
तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था जो उससे आया था स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट अनदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड वाज, अब मैं थोड़ा लाइट में आ रहा हूँ, जो क्वेश्चन लाइट के पूछे गए थे. इसमें स्टूडेंट ये पूछा गया था एक और क्वेश्चन में कि हमारे पास ऐसा एक मिरर था, वन मिरर वाज देयर, जिसमें स्टूडेंट जो इमेज बन रही थी ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो हमें इसमें पूछा गया था व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड डुअल लेवल डायग्राम, टाइप ऑफ मिरर पूछा गया था स्टूडेंट. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, अगर इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है स्टूडेंट, तो इरेक्ट तो दोनों में बनते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. लेकिन कॉनकेव में जब इरेक्ट बनता है स्टूडेंट, वो एनलार्ज होता है. तो डेफिनेटली ये कॉनकेव नहीं होगा स्टूडेंट, द मिरर इज कॉन्वेक्स. इस तरह से आपको पता करना है स्टूडेंट. और फिर इसका आप एक रे डायग्राम पूछा गया स्टूडेंट. द रे डायग्राम ऑल्सो कैन बी ड्रॉन. एक कॉन्वेक्स मिरर लीजिए स्टूडेंट, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखिए, द रे पैरेलल लीजिए, इट विल पास लाइक दिस, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है. और दूसरा स्टूडेंट आप ले सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दीजिए स्टूडेंट. ये रे आगे जा नहीं रही है, मैंने ऐसे इसको डैश डैश बनाना चाहिए था. ये यहीं से वापस हो जाएगी सेंटर पर. तो यहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये है स्टूडेंट इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. तो स्टूडेंट कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा. और स्टूडेंट कॉनकेव मिरर में क्या होता है मैं उसका भी आपको बता दे रहा हूं. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, this is the concave mirror, this is the focus, here the object is kept, the ray parallel to principal axis, it will pass through the focus, another ray from here, angle of incidence equal to angle of reflection. On that basis स्टूडेंट ये वाला अपन बना सकते हैं. कोई आदमी जो यहाँ से देख रहा है स्टूडेंट, उसको ये इमेज यहाँ दिखेगी. तो कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट हमेशा जो इमेज होगा वो होगा स्टूडेंट इरेक्ट एंड एनलार्ज. और क्योंकि ये इरेक्ट एनलार्ज है, दिस इमेज इज वर्चुअल. तो जहां भी इमेज स्टूडेंट इरेक्ट है वो वर्चुअली होगा. तो कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट ऑलवेज वर्चुअल. कॉन्वेक्स मिरर में द इमेज इज ऑलवेज virtual student. Okay, the rest part of the question will be solved in the next video student. Thank you for joining today's class.